she wanted to meet you. बिटिया डॉक्टर बनी बेटा बना है बिटिया वाली आप लोग को आके
से बात कर रहा हूँ। Asli, Aakash. सब आसे पासे. Thank you. ले लिया चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर कोई एक करना चाहिए, एक स्पेशल एक कहते हैं ना, एक लगाव। शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है। अंत जो टीवी में बोलता है ना, सारा काम खड़ा हो गया। I'm going to call on Shri Sudhanshu Mittal, Shri Sanjay Mago, and Shri Ajay.
Sir, look at the camera, please. And Anshu Khanna, Miss Anshu Khanna. Hey, sir, please. So now that we have all of you on stage, I think it is the right time for us to go ahead with the launch of this, the Incredible Aakash Story. So ladies and gentlemen, what we're going to do now is, we're going to have all the books unveiled in a bit. But I think what I'm going to do is hand the mic over to Ajay to entertain all of you for a bit. So Ajay refuses to talk at the moment. This big publisher here has no words. Okay, and that's what he does for a business. He sells words. You're going to have to wait for a bit. I'm so sorry to keep you waiting. Anshu, do you want to come and say a few words? You, a man who I can only call his life a potboiler, and you will discover when you read the book that it's no ordinary life, as Aakash aptly put, one life in many lives. So as we wait to unveil the book, I'd like to tell you how the whole story unfurled. So it was the middle of COVID. We were all hiding in the hills when Ajay, my dearest friend, called up saying, "Will you do this book? It's on education." I said, I don't know anything about education. He said, "No." Then I met, we had talking sessions with Mr. Chaudhry across the screen of a computer. And every time he would start speaking, I would be spellbound, because the whole story sounded too unreal, too teacher, to I don't know how much the company is valued today. It's valued a lot. He's responsible for taking Aakash on an unstoppable multiplication route. Hands together, guys. These are incredible stories unfolding on a joy of But then, thank you for the honor. Thank you everyone for being here. While we wait for Honorable Minister to come in, not yet again. It's been an incredible work of art that we were so proud that Anshu could put it out in the world. As you go through this book, you will realize that it is not just a story about a man. I think to me, it's the India story. Can give birth to fantastic entrepreneurs who can actually make world-class brand, world-class product. This is a story about that. And as you go through the pages, you'll also find a bit of wit there. So the moments that we experienced while talking about the book was also, did bring in some tears in our eyes, because we would. When I say that, I'm sure you're eager to read the book, but please don't overlook the foreword, because I've written that. Serious, I would request you to please. Mr. Sudhanshu Mittal, would you please have you on stage?
publisher Own Books International and a leading voice in the publishing world, has a nose for good books and an acumen to create quality books. His publishing repertoire goes from fiction to food to biographies, art books and children's stories. Under his dynamic leadership, Own Books International has become the go-to publishers by leaders, celluloid stars, artists, fiction writers and legendary chefs. Please Minister of State for External Affairs and Culture, for gracing the meeting and its presence. Once in a while you come across a life that's so inspirational that you can only think about it and withal. It's a fascinating story of entrepreneurial success, but even more fascinating is the story of the man behind Aakash. From humble beginnings, has chosen us to tell his story. It's a privilege to be talking this story to readers all over. I'm thankful to my friend Aakash, who first broached the subject of doing. I would like to thank the whole team at AESL in facilitating this book. so much. It's a pleasure always being part of the amazing things that you do. So now, I'm a new human, a philanthropist. Yet, if you call him teacher, you will get full marks from him. और सभी उपस्थित मेरे मित्रगण, रिलेटिव्स, सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आकर मेरी हौसला अफजाई की, अपना समय निकाला और इस पूरी जर्नी के अंदर आप लोगों का जो साथ रहा है, जो सहयोग रहा है, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ तो इसकी वजह आप लोग हैं। मेरा हार्ड वर्क कम है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की हेल्प टाइम टू टाइम जो मिलती रही है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस थिंग आल्सो। इस स्टेज पर पहुंचने पर जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे एक सीड सो करते हैं और ग्रो करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती चली जाती है, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन एनहांस होते चले जाते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं हमारी सोच कुछ और होती है, डिज़ायर कुछ और होती है, और उम्र बढ़ती है कुछ और डिज़ायर चेंज होती है, सोच बदलती है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये एवोल्यूशन जो है लाइफ के अंदर चलता जाता है। आज अगर इस स्टेज के ऊपर जो हम लेक्चर दे रहे हैं, अगर कोई 25 साल की उम्र मुझे कहता तुम ये करो तो मैं सोचता क्या बात कर रहा है, उस टाइम ये बात समझ में नहीं आती। तो एज का, हर उम्र का अपना अपना सोच होता है और डेफिनेटली मैंने ये देखा है, कंक्लूड किया है कि मैं देयर इज, ये मेरा डॉक्टर है, हर वक्त मुझे दवाई याद दिलाता। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, महसूस किया है कि लाइफ के अंदर जो कुछ हम लिखवा के आते हैं होना वही है, जो मर्जी कर लो वही होना है। वैसे ही हालात ईश्वर बनाता है, वैसा ही डीएनए काम करवा लेता है। हर चीज़ पहले ही डीएनए के अंदर कोडेड है, हम यहाँ सिर्फ डिकोड करने के लिए पैदा हुए हैं। और कुछ कुछ स्टेजेस के ऊपर लाइफ में मैंने देखा है कि डेस्टिनी को मैंने बदलते हुए देखा है, हाथ की रेखाओं को बदलते हुए देखा है। तो कर्मा के द्वारा और सही इंटेंशंस के द्वारा, सही इंटेंट ही लाइफ का मूल मंत्र है। कई बार हम सोचते हैं हम अगर मेरा काम ईश्वर कर दे तो मैं गोल्ड का ये बनवा दूंगा, मैं इतना पैसे चढ़ा दूंगा। कभी भगवान को किसी चीज़ की लालच देते हैं। तो मैं एक बार सोच रहा था कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं, हम तो केवल भिखारी हैं, मांगते ही रहते हैं, और भगवान को हम दे क्या सकते हैं, दे तो सब कुछ वही रहा है। फिर भी मेरे दिमाग में आता है हम एक चीज़ है जो भगवान को दे सकते हैं, धन्यवाद कि तुमने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, और बिना पैसे के दिया, फ्री में दिया। मजे की बात,
तो उसका धन्यवाद करना बनता है। और जो लोग धन्यवाद करते रहते हैं, पल पल उसको याद करते रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई संकट नहीं आता, आता भी है तो चल जाता है। तो इसलिए ये मैंने सीखा है इस पूरे सफ़र के अंदर कि जब आप ईश्वर का स्मरण हर समय दिमाग में रखते हो और अपनी सारी अचीवमेंट्स को उसी को देते हो, अपने आप कुछ नहीं रखते हो, तो यू आर ऑलवेज बेटर ऑफ। और जिस टाइम हम ये कहते हैं कि मैंने कुछ किया है, ये मैं शब्द सबसे वर्स्ट शब्द है लाइफ के अंदर। मैं की तो पावर ही नहीं है। एक बुलबुला किसी पाइप के अंदर फंस जाए, पेट में फंस जाए, वही हमारी लाइफ हैंड कर देता है। तो इतनी शक्ति इंसान की है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। बाकी कहने के लिए कुछ भी कहते रहो, ज़रा से भी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होती, ज़रा सा पेन होता है उसी में करा पड़ते हैं। तो हम वैसे सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सोचने की बात है, करने वाला सब कुछ वही है। ये कहानी ऐसी बनी है कि मैंने ये भी देखा है कि ईश्वर जो भी करता है सही करता है और वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। ये दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको तकलीफें दे रहा है, जितनी ज़्यादा दे रहा है, तो ये समझा मेरे लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है तो मुझे इसको पक्का कर रहा है, मुझे किसी अगले सफ़र की तैयारी के लिए तैयार कर रहा है। वो बड़ा कलाकार है और इसलिए मैं हमेशा ही सोचता रहा कि मैं कई बार कोई तकलीफ नहीं होती थी, दुख नहीं होता था, मैं कहता क्या हो गया, मेरे कोई गलती तो नहीं हो गई, अब मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा भगवान, कुछ ना कुछ तो करो जिससे मेरा काम चलता रहे। तो हमेशा ही ये जान लीजिए कि जब कभी आपको भगवान तकलीफ देता है, पहली बात उसका धन्यवाद करो, उसने आपको इस लायक समझा कि आप वो तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा पिता है, हमारा बुरा कैसे कर सकता है, कभी कर ही नहीं सकता। वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, यही अगर सोचते रहें तो तकलीफें लाइफ के अंदर बहुत कम होती है। अदरवाइज हमेशा ही लाइफ आदमी रोता रहेगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं कहता हूँ यार मेरे साथ ही कर तू, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो हमारी लाइफ स्टोरी में भी ऐसा रहा है कि जब जब कोई चीज़ डिफ़िकल्टी में होती है, जब हम हार्डशिप के अंदर होते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड होते हैं, तब हमारे जो अंदर जो शक्ति है उस कम पैसे वालों के होते हैं, वो नंगे सारा दिन सर्दियों में घूमते रहते हैं, ना उनको जुकाम होता है, ना उनको बुखार आता है, ना कुछ आता है। और जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं, ज़रा भी रजाई मुँह से उतरी नहीं, चीज़ें शुरू हो गई, डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया, तो उसमें इम्यूनिटी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। वाइल्ड ब्रीड बनने के लिए हमें हमेशा ही फाइट नेचर के साथ उनके साथ करना चाहिए। इससे पहले कि मैं यहाँ से रुखसत करूँ, अपनी कहानी एक बार लिख देता हूँ। ये ओम इंटरनेशनल पब्लिकेशन का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मेरी कहानी लिखी जा सकती है। और उन्होंने बहुत अच्छी राइटर मिस्टर खन्ना को भेजा, जिनकी अंग्रेजी के मैं हर बार पढ़ते थे मैं डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, बहुत मुश्किल बात है। सीधे साधे रास्ते में है, उतना मज़ा तेरे शब्दों में नहीं है। शब्द वो जो दिमाग के अंदर जाए, दिल के अंदर जाए, सोचना ना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि आगे से कोई कहानी लिखें तो शब्दों को थोड़ा सा हमारे ऐसे लोगों को ध्यान रख के लिखा जाए। टाइम निकाला, आप लोगों ने भी टाइम निकाला। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। दिस स्टोरी will definitely inspire the people who are in the villages, who are deprived of any facility in their life, who wish that they should become something great in their life. So this will be definitely working as a role model for them. और मैं चाहता हूँ कि अगर 1000 किताबें बेचने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर 10 लोगों की ज़िंदगी भी सुधर गई और उन्होंने लाइफ में कुछ कर दिया, तो इस किताब को लिखने का पर्पस, छापने का पर्पस अचीव हो जाएगा डेफिनेटली। जिस प्रकार से आपने आज ये मार्गदर्शन दिया, एक अध्यापक ही इन्हीं शब्दों का सदुपयोग और उपयोग कर सकता है। डॉक्टर साहब, जो संघर्ष में जीवन आपका रहा है और माता रानी की कृपा से देश और विदेश में आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़कर सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 1.5 से पौने 2 लाख IITians वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, विदेशों में सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पे आसीन हैं। जो आपने एजुकेशन के द्वारा
इस देश को, इस समाज को जो आपने दिया है वो अनुकरणीय है। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे यहाँ की माननीय सांसद महोदया एवं मंत्री विदेश मंत्रालय की और कल्चरल मिनिस्टर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी हैं मुख्य अतिथि के रूप में। इसका अगर इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में कर सकें तो इसकी एक रीच के रूप में ये क्योंकि मैं एक विद्यालय का संचालन भी करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये लाइब्रेरीज के अंदर भी दिस बुक विल फाइंड इट्स प्लेस। Mr. Chaudhry, I must say that you know what you said about saying thank you, because it's not about you, but it's about everyone around you and the one above. That is something that I'm going to take home and tell my children, and I'm going to see to it that they read your book, because your journey is one of the most inspiring and humbling that I have had the opportunity to start reading. And I just want to thank you, because your words of wisdom are something that every child in this country of ours needs to hear and needs to live. So thank you very much for it. मैं जब चौधरी जी को सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक लाइन कॉल रही थी, और वो लाइन थी कि उस आदमी को क्या गिराएंगे जिससे ठोकरों में चलना सिखाया। तो जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की हो, मेहनत की पराकाष्ठा, जिसका जीवन एक संदेश रहे, उसको कोई क्या मतलब तोहफा क्या दे सकते हैं आप। लेकिन when I was reading about him, and I've read not the book but the abridged version of Mr. Chaudhry's life, definitely this is a life which is depicting aspirational India, which is telling the story of India, which is sending a message that this is what India and Indians stand for. People who can work hard, people so-called came from nowhere. Nowhere does not mean they came from nowhere. Nowhere means they were brought up by very principled and value-based parenting is what they got. And had they not got the value-based parenting, they would not have reached where they have reached. The fact his parents would have told him and have given him the confidence to face up to the world and work hard, be on the right path. Do not find shortcuts is the message which his life is giving. And that message becomes so important for many of us who see lives being lived all around us. I am sure I know of people who try to find shortcuts in life. I know people who change with time, but definitely not Mr. J C Chaudhry. So starting with a group of 10-12 students, starting a class, a coaching class for medical entrance examination. All those who have had children would know how difficult it is to get them admitted into these colleges, how difficult it is to take these exams, how much effort that goes into preparing and working for it, because the competition is so tough and so many people for single seat. And preparing them for that kind of exam with 10-12 students and getting 7 of them in single row into the colleges, obviously the message will go louder and louder, and that echo would bring more business. And then you start multiple centers, and multiple centers also mean that much more work. Multiple centers also mean that much more effort. And someone who started his life from humble background, और बहुत तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा इस पे टिप्पणी कर दूं कि मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर सरकारी स्कूल में पढ़े थे, क्योंकि उस जमाने में सरकारी स्कूल की पढ़ाई बेहतर होती थी, तो वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल होता था। तो अभी
मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों की जिम्मेवारी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कराएं और माँ बाप का भी फर्ज है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी तो तकमों पे निकल गई, not on the real studies but the life kind of moved around many ways, and I just pray that the education system with new education policy changes and gives opportunities to students to have a flexi system. Some people, because of the hardships that they face in life, may take a year or 2 years or some years off and may want to rejoin the system of education. The education system should be more oriented towards the practical aspects and things. That's a conversation for another day. But my hopes increase and my prayers go for Mr. Chaudhry and of course to Ashish and Aakash. But I want to cite one line from the book, and that is in chapter 8. And I thought I'll do the needful and I'll read this. So this is a quotation from Warren Buffett. Aptly puts it, someone sitting in the shade must not forget that someone planted the tree long ago. So someone worked very hard to establish a company worth 1,200 crores. And that's a lesson for the boys and the generations to come, that one lifetime created this asset. And whatever we are enjoying, what everybody else is enjoying, is possible because someone really gave his life for the well-being of society, added service and quality to the education and well-being of many, many people, as Mr. Papreja just now mentioned, that close to 4.5 lakh students who became doctors and 1.5 lakh people who became engineers and got engineering qualification from IITs and things. It's a huge contribution that you made that happen. You put the skill of working hard in those students and you added value to everybody else's life around you, and of course added value to the company. And people who understand business, this aspirational India and this lesson is a lesson which needs to travel far and wide. And I completely agree with Mr. Papreja just now that the book be translated into Hindi. I'll say why Hindi in all the regional languages. सब लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अगर आप एक बार तय कर लें कुछ भी पाने का या मेहनत करने का, और मेहनत की पराकाष्ठा तक उतरने में आपको कोई तकलीफ ना हो, और सीधे साधारण रास्ते भी आपके लिए उम्मीद ही नहीं बल्कि कामयाबी का कारण बन सकते हैं। आपको किसी का बेटा बेटी होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफिक स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपने जिंदगी कहाँ से शुरू की वो जरूरी नहीं है, आपने जिंदगी कहाँ खत्म की वो जरूरी है, और किस रास्ते पर चले उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आपका रास्ता भी ठीक था, आपकी मंजिल भी ठीक थी, और आपने बहुत लोगों की जिंदगी में मदद की, तो ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आपके जीवन में सुख शांति रहे, और आपके जीवन को प्रेरणा समझकर अधिक से अधिक लोग उस रास्ते को अपनाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और ये किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसकी मैं उम्मीद करना चाहती हूँ। Anshu Khanna is a journalist, a communicator and the custodian of Royal Fables, India's only authentic platform that preserves the craft, culture and cuisine of princely India. Anshu Khanna is that she insists is the biggest pot boiler she has heard first person in her life. Anshu Khanna. For the rest of the things to come, we have a beautiful movie which encapsulates his life. After that, we are also going to talk about the mission of his life, the Char Dham, which is in
को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आज मैं आपको एक शख्स की छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिसमें उससे जुड़े हुए हर पहलू के बारे में जानेंगे। वो किस तरह जिंदगी को जिया और दुनिया को जीने की राह सिखा रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं बीते हुए कल में। 47 जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट रहा था, तब लोग अपने अपने आशियाने की तलाश में भटक रहे थे। और इसी दौरान श्री नानक चंद जी अपने 6 लोगों के परिवार के साथ अपना फलता फूलता घर पाकिस्तान में छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आशियां की तलाश में आ गए। समय गुजरता गया। सन 1950 18 नवंबर सुबह 4:15 हरियाणा के एक गांव सेवली में एक बच्चे का जन्म हुआ। मां बाप ने प्यार से इसका नाम जगदीश रखा। उन्हें क्या पता था कि जगदीश पूरे जग को दिशा दिखाने वाला है। एक छोटा सा घर जहां इसने अपने बचपन को बहुत ही खुशी और अटखेलियों से गुजारा। किसे मालूम था कि ये वही बच्चा है जो एक दिन अपने कर्मों से इतिहास लिखेगा। जगदीश ने एक छोटे से घर में अपने बचपन की शुरुआत की। जगदीश ने स्कूल का रास्ता चुन लिया और प्राथमिक पाठशाला के लिए निकल पड़ा। जब जगदीश कक्षा 2 में था, तब नानक चंद अपने परिवार से सेवली से पलवल कैंप पहुंच गए थे, जो हरियाणा में है। क्या आखना चाहते चौधरी साहब? जगदीश जी को क्या आखना का जन्म हुआ। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन खुददार भी था। नानक चंद ने अपने कपड़े की दुकान कर ली और उनकी माँ सिलाई करती। एक हंसता खेलता परिवार, लेकिन पल भर में मानो किसी की नजर लग गई। एक दिन अचानक जब जगदीश 9 बरस का था, तो जगदीश की मां संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जगदीश का हंसता खेलता परिवार मानो उजड़ गया। मां के चले जाने के बाद परिवार पर जैसे विपदा के बादल फट गए। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है। समय गुजरता गया। नवंबर 1959 परिवार ने समय के साथ समझौता किया। इसीलिए नानक चंद जी परिवार को लेकर पलवल कैंप से करीब के कस्बे हथीन में आकर रहने लगे। इन्हीं गलियों में अपने दोस्तों के साथ मस्त मलंग होकर खेला करते। हथीन आकर जगदीश ने सरकारी पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। जगदीश ने कक्षा 4 की अधूरी पढ़ाई और कक्षा 5 की पाठशाला में यही कहीं टाट पर बैठकर की। करीब में सांप जी नाम का एक तालाब था, जो उसका स्विमिंग पूल था, और भैंस की सवारी उसकी 4 व्हीलर। जगदीश को कुश्ती का बड़ा शौक था। जगदीश ने करीब के सरकारी स्कूल कक्षा 6 में दाखिला लिया और 6 से 10 तक की तालीम इसी सरकारी स्कूल में ली। ये उसी जमाने की मेज है, बस्ता, अलमारी, ऑफिस और ये क्लासरूम जिसमें कक्षा 10 लगा करती थी। मैट्रिक के बाद जगदीश के पिताजी ने उसे एक चप्पल खरीद कर दी, ताकि धूप से उसके पैरों
पलवल। कहते हैं ना कि समय लौट कर जरूर आता है। एक बार फिर से जगदीश को पलवल अपने पास ले आया, इसलिए उसने कक्षा 11 की तालीम लेने के लिए SD कॉलेज पलवल में दाखिला लिया। जगदीश ने पहली बार बिजली देखी। इससे पहले तो वो सिर्फ चिरागों में अपनी तालीम हासिल किया करता था। एक ऐसा वर्ष जब वो 12वीं पास कर चुका था, अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। कहते हैं कि इस उम्र में जज्बात 7वें आसमान पर होता है। एक नई उमंग, नई तरंग भी होती है। इस उम्र में जगदीश को पिक्चरों का बड़ा शौक था। ये लो डॉक्टर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। अब क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। I'm sorry. जगदीश ने आगे BSc सेकेंड ईयर DAV कॉलेज जालंधर और BSc थर्ड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव 1970 में पूरी की और PITS पिलानी से 1972 में MSc बॉटनी में की। MSc करने के दौरान केमिस्ट्री प्रोफेसर अर्जुन देव तनेजा का काफी सहयोग रहा। जीवन यूं ही चलता गया। सन 1972। अहमियत इस बात की नहीं है कि हम कितना चलते हैं, अहमियत इस बात की है कि हम कैसे चलते हैं। जगदीश का मानना था कि शिक्षा तो हमने हासिल कर ली, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाना और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देना। इसीलिए जगदीश ने शिक्षा का सफर चुना और फिर शुरू हुई एक नए सफर की शुरुआत। 1972 में वैश कॉलेज भिवानी से 446 रुपए से शुरू हुआ शिक्षा का ये सफर। 1973 से 74 इन्होंने हंसराज पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ाया और फिर इसके बाद 1974 से 1977 लिंक रोड स्कूल में रहे। सन 1977 जगदीश अपने एक नई जिंदगी की तरफ जाने वाला था। उसका विवाह होने वाला था। जगदीश, जिसने श्रीमती कमला देवी चौधरी को अपने जीवन एक ऐसा साल जब जगदीश के परिवार ने एक नन्हे से फरिश्ते को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम आशीष रखा। 11 सितंबर 1979 एक ऐसी तारीख जहां जगदीश के परिवार में एक और नन्हा फरिश्ता आया जिसका नाम उसने आकाश रखा। सन 1986 में जगदीश का ट्रांसफर विकासपुरी में हो गया। सिर्फ स्कूल में पढ़ाकर संतोष नहीं हुआ। जगदीश शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने वाले थे। सन 1988 एक ऐसा वर्ष जिसे नहीं मालूम था कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। यहीं से शुरुआत हुई इस संस्था की कहानी। एक ऐसी संस्था जिसका नींव 22 सितंबर 1988 को गणेश नगर में रखी गई। एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत और महज 12 स्टूडेंट के साथ की, लेकिन जगदीश नहीं जानता था कि ये 12 इसके जीवन में कितने गुने बढ़ा कर देगा। सन 1992
जगदीश प्रिंसिपल बन चुके थे। वो अपने 100 दिन के कार्यकाल में 100 बड़े बड़े काम करा चुके थे और फिर वापस 1993 में इनका ट्रांसफर विकासपुरी हुआ। सन 1994 20 साल सरकारी नौकरी करने के बाद नवंबर 1994 को इन्होंने सरकारी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में कामयाबी जगदीश के कदम चूमने वाली थी। जगदीश अब उस मुकाम पर आ चुके थे जिन्होंने 1988 को जिस इंस्टीट्यूट का नींव रखा था, वो अब इंस्टीट्यूट से एक बहुत ही विशाल कॉर्पोरेट बन चुका था। जगदीश को उनके कार्यकाल में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जगदीश की रुचि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी थी। हेल्थ केयर के लिए 27 अगस्त 2017 में एक हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसमें 230 बेड है। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सभी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज शामिल है। ये हॉस्पिटल आज कम्युनिटी की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहा है और ये बहुत काबिल तारीफ है। आकाश इंस्टीट्यूट और आकाश हेल्थ केयर में अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने के बाद जगदीश ने आकाश हेल्थ केयर की जिम्मेदारी आशीष को और आकाश इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी आकाश को सौंप दी और वे खुद समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ गए। अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट से जो हम आपको पहले बतौर टीवी पे देखते रहते थे डिबेट्स के अंदर में, और अब आपको एक भारत सरकार के मंत्री के रूप में, और आप किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का नेतृत्व कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीनाक्षी जी, आपके समय का। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर आशीष चौधरी जी से और आकाश जी से कि कृपया। And then after that, we would like to welcome Tista to remain on stage for a panel discussion with the family. A few questions from the boys. लाइफ के अंदर जितने भी मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे अमिताभ के डायलॉग से अडॉप्ट किए हैं। रियल लाइफ में कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, लेकिन रियल लाइफ में मुझे काफ़ी गुरु मिले, जिनसे मैं सीखा। एंटरटेनमेंट के लिए सिवा मूवीज़ के अलावा कोई होता नहीं था, तो जो उनकी अच्छी बातें होती थी वो अपने अंदर ड्रॉप कर लेता था और वैसे ही लाइफ का रन होता था। जैसे मेरे पिताजी थे तो वो भी कभी पैसे देते थे और फेंकते थे, ये पैसे ले लो, तो मैं उठाता नहीं था, पहले हाथ में होगा नहीं। तो वही डायलॉग मैंने यहाँ पर देखा, मुझे अपने फादर याद आ गए। वो उनकी बात आती थी, पैसे फेंकते थे तो मैं लेता नहीं था, वही यहीं से सीखा मैंने, पैसे लेता। ये सुविधाएँ तो आज भी सारी 100% स्कॉलरशिप हम बच्चों को देते हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हमारे जो टीवी के चैनल हैं उनके माध्यम से आप ये लगा लीजिए कि मेडिकल की जो हमारी फीस 2.25 लाख रुपए होती है, वो केवल 25 रुपये 40 रुपये में बच्चों को मैं बेस्ट टीचर के द्वारा गांव के अंदर पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पर मेरा सपना था कि हर गांव के अंदर दिल्ली का बेस्ट टीचर पहुँचे, और वो हमने टेक्नोलॉजी के द्वारा पहुँचा है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज 45 रुपये महीने के अंदर मेरे टॉप टीचर का बच्चा गांव में पढ़ रहा है, और वही सब्जेक्ट जो है हम लोग 2.2 लाख ड्रीम आई टेकन। तो कर दिया, उसमें मुझे डिफिकल्टी जो आई तो मैं घबराया नहीं, उससे लगा ही रहा उसके अंदर। मैंने सेल्फ ऑटो मेरा खुद मोटिवेशन करता था अपना, तो ऑटो मोटिवेशन मेरे अंदर बहुत रहा है।
मुझे या तो ऑटोबायोग्राफी चला है, जब कभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया या टूट गया तो मैं सिर्फ मंदिर में जाके माता रानी के बैठ जाता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे आंसू भी आए थे और तू संभाल ले, तुम ऑनेस्टी से और हार्डवर्क से मैं अगर पहुंच सकता हूं तो बाकी भी लोग पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में, शॉर्टकट में गलतियाँ होंगी, रॉन्ग होगा। तो ऑलवेज गो बाय नॉर्मल रूट, वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगना चाहिए कि मेरे से बेहतर कोई नहीं, मैं ही अल्टीमेट हूँ और मेरे साथ ईश्वर है। ये कोई चीज़ दिमाग में रख लो तो फिर कोई और मैं फिर से रिजुवनेट हो गए, फिर काम करना लग गया। तो ऐसा हुआ है लाइफ में कई बार। एक आदमी, दो तरह के आदमी होते हैं। एक होता है कि आपको मोटिवेट करता है, हेल्प करता है, लेकिन साथ साथ आपको उंगल भी देता रहता है, तंग भी करता रहता है। मैं कहता हूँ अगर तंग नहीं किया, ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसको मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। चुप रह के जितना मुझे और क्लोज ला पाए, शायद उतना तंग करके भी ला पाते। So patience paid very well. That dividend was very good. That is a major contribution. और शुरू में क्योंकि मैं सारा दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने और सिलेक्शन में लगा रहता था, तो इनका रोल उस टाइम बहुत मेजर था कि बच्चों की ग्रोन हो रहे थे, बच्चों की केयर करना, बच्चों को देखना टाइम पे कैसे आपसे डेवलप हो रही है। तो मैं सुबह का रात को आता था, तो इनका कंट्रीब्यूशन इन बच्चों को ग्रोन अप करने में स्टार्टिंग के अंदर बहुत रहा है। जब ये बच्चे कॉलेज में आने लग गए तो फिर मेरा रोल चालू हो गया, फिर मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया कॉलेज के अंदर भी, वैसे भी big round of applause for the lady the sports classes and keeping us in discipline. At that age, the tender age, if she was not that vigilant, I think we could have been on some other path. So that was something which we really respect, and it was something which was done without any motive. Pay back the regards and respect at that age, being in the shoes which we are today. Absolutely. Thank you. पेरेंट के सामने कंप्लेंट करते हैं ये लड़का पढ़ता नहीं है। या